Hello students, today I am going to explain sexual reproduction. Sexual reproduction in plants, sexual reproduction in human beings. And we know that the mode of reproduction that takes place with the involvement of two individuals of two different sexes, that is male and female. It means the reproduction which takes place by the involvement of two parents. Involvement of two individuals, and we can call them parents. Parents means two individuals, that is male and female. So male and female are involved in the sexual reproduction. During sexual reproduction, male organs having male sex organs which produces male gametes. These are known as sperms, and the sperms are small and motile. Male parent produces male gametes known as sperms, and the sperms are small and motile. Motile means they can move. And the female parent having female sex organs in which ova, that is eggs, are produced, and eggs are large and they store food, and they are immotile which cannot move. Male and female gametes fuse to form a zygote that grows into new organs. These two gametes fuse together and they form the zygote. मेल और फीमेल गेमेट में फ्यूजन होता है और उसके बाद zygote प्रोड्यूस होता है, एंड zygote फिर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डीएनए एज वेल एज cellular apparatus of two different organs which promotes diversity of characters in the offspring. In the sexual reproduction, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है. गैमेट्स में डीएनए है, इट मींस गैमेट इज ए सेल. इसके अंदर डीएनए है, उसके और सेलुलर apparatus पार्ट्स हैं. ठीक है, तो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी दोनों गैमेट्स के फीचर्स जनरेशन में आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि sexual reproduction promotes diversity of characters because characters of two individuals are combining. Since gametes are derived from two different organs, it results in new combination of genes which increases the chances of genetic variation. In the sexual reproduction, दो ऑर्गेनिज के कैरेक्टर्स कंबाइन हो रहे हैं. ठीक है, उनके जीन्स कंबाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से there is a increases chances of the genetic variation. तो वेरिएशन ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो ऑर्गेनिज के जीन्स कंबाइन हो रहे हैं, उनके वेरिएशन ज़्यादा होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, दो इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेशन में आते हैं, तो वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. ठीक है, जब वेरिएशंस होते हैं तो इसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है. Sexual reproduction involves division in the sex organs that reduces the DNA matter to half so that the zygote formed after fusion has the same amount of DNA as the parent. It maintains DNA in a species. Sexual reproduction में सेक्स ऑर्गन्स के अंदर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से डीएनए हाफ हो जाता है, एंड हाफ होने पर gametes are formed, not zygote. Whenever the division is taking place in the cell of sex organ, the number of chromosomes remain half. Okay, when the number of chromosomes remains half, gametes are produced, and these gametes fuse together. ठीक है, और वो अमाउंट क्या है, फिर सेम हो जाता है. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. Sexual reproduction involves division in the sex organs that reduces the DNA matter to half so that the gametes formed after fusion has the, here we can say gametes formed होते हैं, लेकिन gametes का जब फ्यूजन होता है तब क्या बनता है, zygote का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, दिस वाज द करेक्ट सेंटेंस कि सेक्स ऑर्गन्स में डिवीजन होगा, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाएगा गैमेट्स के अंदर. जब वो गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, तो जब ज़ायगोट बनेगा, ठीक है, ज़ायगोट फॉर्म आफ्टर फ्यूजन, तो उसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ डीएनए कैरी होगा जैसा कि पेरेंट्स में है. एज अ पेरेंट्स इट मेंटेन्स डीएनए इन द स्पीशीज. लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ
वी नो दैट कि टू ऑर्गेनिज आर इन्वॉल्व हियर, तो कई बार क्या होता है अनडिजायरेबल फीचर्स भी कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, वो अनडिजायरेबल फीचर्स भी जनरेशन में रहते हैं, तो ये किसकी लिमिटेशन भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ वी विल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. You know that flower is a reproductive part of the plant and flower consists of four parts. Flower के four parts होते हैं sepals, petals, stamens and carpels. Carpels को हम pistil भी बोलते हैं. Sepals का है they are the outer green structure, बाहर की तरफ होता है green structure जो कि फ्लावर को बड स्टेज में उसके इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. पेटल्स कलरफुल होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉलिनेशन बिकॉज दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. पेटल्स की वजह से पॉलिनेशन होता है क्योंकि इंसेक्ट्स उस कलर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं. स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट कंटेन मेल गैमेट्स. स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. और ईच स्टेमन हैज टू पार्ट, हर स्टेमन के फिर दो पार्ट होते हैं, स्टॉक एंड एंथर. जैसे फिलामेंट जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एंथर जो स्वोलन रूट पार्ट है, ठीक है. फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टॉक या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फिलामेंट, और एक स्वोलन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंथर. यानी टू पार्ट्स ऑफ स्टेमन आर देयर, फिलामेंट एंड एंथर. फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एंथर ऊपर स्वोलन पार्ट होता है. एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. वी कैन सी दिस फिगर ऑफ फ्लावर ऑल्सो. आउटर पार्ट इज सेपल, देन उसके बाद कलरफुल पार्ट पेटल, उसके बाद स्टेमन होते हैं, स्टेमन के दो पार्ट है एंथर एंड फिलामेंट. फिर अंदर पिस्टिल जिसको हम कार्पल भी बोलते हैं. पिस्टिल के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो कार्पल और पिस्टिल, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट्स. ठीक है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. इसी तरह से पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. कार्पल हैज थ्री पार्ट्स, कार्पल के तीन पार्ट होते हैं. स्टिग्मा विच इज टॉप स्टिकी पार्ट जो कि ऊपर वाला सोलन पार्ट होता है, स्टिकी पार्ट होता है टॉप पार्ट, एंड रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन. और ये पॉलिनेशन जब होता है तो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करते हैं, स्टिग्मा रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स को. स्टाइल विच इज द मिडल लॉन्ग पार्ट एंड ओवरी विच इज द स्वोलन पार्ट एंड कंटेन्स ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एक्सेल. ये देख सकते हैं हम डायग्राम. अपर पार्ट है स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट है स्टाइल और नीचे वाला पार्ट स्वोलन पार्ट है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स के अंदर एक एक्सेल प्रोड्यूस होती है विच इज द फीमेल गैमेट. इसी तरह से हम देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट हैं, ऊपर पोर्शन इज एंथर एंड लोअर पोर्शन इज फिलामेंट विच इज स्टॉक लाइक. और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ presence of reproductive organ, the flower may be of two types, bisexual and unisexual. When both the sex organ are found, that is stamen and carpels both are found, they are known as bisexual. इसमें एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज. यूनिसेक्सुअल मीन्स या तो उसमें स्टेमन हुआ या कार्पल होगा, आइदर स्टेमन और कार्पल इज प्रेजेंट. इसमें एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन. नेक्स्ट टर्म इज पॉलिनेशन. Pollination is the transfer of pollen grain from an anther to the stigma. Pollination में pollen grains का transfer होता है anther से stigma के बाद, ठीक है. So process of transfer of pollen grains from an anther to the stigma of the flower is known as pollination. Two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. In the self-pollination, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. एक ही प्लांट है, मान लीजिए रोज प्लांट है, ठीक है, तो उसमें एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ठीक है. या फिर सेम प्लांट यानी रोज का सेम प्लांट है, उसमें एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower or another flower of a different plant of the same species. ठीक है. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएंगे, ठीक है, सेम स्पीशीज वाला. जैसे मान लीजिए दो रोज प्लांट हैं, तो एक रोज प्लांट के पोलन ग्रेन
दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉस यानी क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, लेकिन प्लांट्स कैसे होंगे, सेम स्पीशीज वाले प्लांट्स होंगे। एंड दिस क्रॉस पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस बाय द डिफरेंट एजेंट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। मैक्सिमम इंसेक्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस of fusion of male and female gamete to form a zygote during sexual reproduction, ठीक है। It is the process of the fusion of male and female gamete and by which zygote is produced. Pollination is followed by fertilization in plants, जैसे pollination हो जाता है, pollen grains स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद fertilization का प्रोसेस स्टार्ट होता है। The events are pollen grains लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, ठीक है। क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। देन पोलन ट्यूब्स ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, उसके बाद पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस पोलन ट्यूब ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, ये पोलन ट्यूब स्टाइल में से होती हुई ओवरी तक पहुंचती है थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। ओवरी जो होती है उसके ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में माइक्रोपाइल एक रीजन होता है, उसके थ्रू वो ओव्यूल के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर जब ओव्यूल के अंदर जाएंगे तो माइक्रोपाइल एक रीजन होता है, उसके थ्रू वो एंटर होते हैं। पोलन ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल्स, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल्स which are also known as male gametes. Each ovule has 2 polar nuclei and a female germ cell. और हर ओव्यूल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट तो एक ही होगा लेकिन 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, इनका भी फर्टिलाइजेशन में रोल है। पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल जर्म सेल्स यानी 2 गैमेट्स, ठीक है। पोलन ट्यूब 2 गैमेट्स रिलीज करेंगे इनसाइड द ओव्यूल के अंदर पहुंचने के बाद वो 2 गैमेट्स रिलीज करते हैं। वन ऑफ देम फ्यूजेस विद फीमेल जर्म सेल, एक गैमेट क्या है, एक फीमेल गैमेट यानी फीमेल एग सेल से फ्यूज करेगा एंड फॉर्म ए ज़ायगोट एंड व्हिच ग्रोज इनटू बेबी प्लांट, ठीक है। और वो ज़ायगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, फिर एम्ब्रियो को हम बेबी प्लांट भी बोलते हैं, एम्ब्रियो इज आल्सो नोन एज बेबी प्लांट एंड द फ्यूजन इज नोन एज सिनगेमी, इट मींस फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद अनदर विद एग सेल इज नोन एज syngamy and by which zygote is produced and zygote changes into embryo. The other male germ cell यानी male gamete, male germ से मतलब यहाँ पर है male gamete. The other male gamete fuses with the 2 polar nuclei and this is known as triple fusion. जो दूसरा फीमेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो यहाँ पर एक मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं, ठीक है। फिर ये फीमेल गैमेट हो गया तो ये क्या होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, हाफ हाफ मिलके यानी ये मेल गैमेट हो गया, ठीक है, एक मेल गैमेट, और ये दूसरा क्या है, ये फीमेल गैमेट हो गया। और इससे बनता है ज़ायगोट, और ज़ायगोट क्या है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हाफ रह गए थे वो क्या है, फिर वापस उतने ही हो जाते हैं जो ओरिजिनल थे। मान लीजिए किसी प्लांट में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसके गैमेट्स में 8 रह गए, तो 8 क्रोमोसोम्स मेल गैमेट के, 8 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट के, तो उनको बोलते हैं एन हाफ रह गए। अब वो जब कंबाइन हो जाएंगे ज़ायगोट में क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे, तो उनको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। तो डिप्लॉइड हो गए वो, लेकिन ये तो गया सिनगैमी के थ्रू। अब जो सेकंड मेल गैमेट है, ठीक है, दूसरा मेल गैमेट है, एग सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई में एक का एन हो गया और दूसरे का भी एन हो गया, ये आपस में मिलके बनाते हैं ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इस तरह से 2 टाइम फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, इट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड इट इज सिनगैमी। So triple fusion is taking place and syngamy is taking place. So 2 time fertilization is taking place. So we can say it is the double fertilization.
ठीक है, एग्जाम में कई बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो, पोलन ग्रेन आर रीचिंग ऑन द स्टिग्मा, हम देख सकते हैं पोलन ट्यूब प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर फिर दो मेल जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, दो मेल गैमेट्स होते हैं। अब ये मेल गैमेट्स क्या है, ये ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर एंटर कर, फिर ये ओव्यूल है अंदर स्ट्रक्चर, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सैक है, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये फीमेल गैमेट होते हैं, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब जाती है, एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, और जो आप सेंटर में दो देख रहे हो ये सेंटर वाले ये पोलर न्यूक्लियर है, तो इन पोलर न्यूक्लियर से सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा, जिसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और फर्स्ट मेल गैमेट एक एक्स सेल से फ्यूज करेगा, उसको बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। अब इस समय फर्टिलाइजेशन हो चुका है। ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंज होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है, जायगोट बन चुका होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स एन मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, जायगोट में कई बार डिवीजन होता है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। एंड द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड चेंजेस इनटू सीड, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर ये फीमेल गैमेट होता है, तो ओव्यूल का एक टफ कोट बना लेता है, एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, और ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रैपन टू फॉर्म ए फ्रूट, और ओवरी क्या है, ओवरी जब ग्रो होती है और वो एक फ्रूट में चेंज हो जाती है, जैसे गुआवा है, गुआवा में जो हम लोग फ्रूट खा रहे हैं दैट इज द ओवरी, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड के अंदर। तो जो सीड्स होते हैं, सीड्स आर द कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल, एंड जो फ्रूट है, फ्रूट इज द कन्वर्जन ऑफ ओवरी। बाकी जो पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, सेपस, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, श्रिवल एंड फॉल ऑफ, ये श्रिंक हो जाते हैं और ये धीरे धीरे ये फॉल ऑफ हो जाते हैं। पेटल्स, सेपस, स्टेमन, स्टाइल्स दे फॉल ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, अब सीड के क्या पार्ट होता है, सीड एंड इट्स पार्ट। द एडवांटेज ऑफ सीड इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर प्लांट, दैट इज एम्ब्रियो, बेबी प्लांट को बोलते हैं एम्ब्रियो। सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड है, जब भी हम प्लांट ग्रो करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो हम सीड डालते हैं सॉइल के अंदर, तो इसी सीड की वजह से वो एम्ब्रियो जो होता है, वो एम्ब्रियो नए प्लांट में, न्यू मैच्योर प्लांट में चेंज होता है। सीड हैज टू पार्ट, सीड के दो पार्ट होते हैं, cotyledons एंड एम्ब्रियो। cotyledons दे आर द स्टोरिंग द फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट, इस तरह का, जैसे ग्राम के, एक ग्राम का सीड है, जैसे हम देखते हैं ग्राम में टू, इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं कॉटिलीडन, और साथ में एक होता है एम्ब्रियो। सीड हैज टू पार्ट्स, cotyledons and embryo. Cotyledons store food for the future plant and embryo develop into the plant. तो एम्ब्रियो जब प्लांट में डेवलप होगा, तो उस समय जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉटिलीडन्स। एम्ब्रियो हैज टू पार्ट्स, प्लूमोल एंड रेडिकल। अब एम्ब्रियो के फिर दो पार्ट्स होते हैं, प्लूमोल डेवलप्स इनटू शूट, प्लूमोल वाला पार्ट है जो शूट को बनाएगा, शूट मींस क्या होता है, स्टेम विथ लीव्स, यानी स्टेम को फॉर्म करेगा, लीव्स को फॉर्म करेगा, दैट पार्ट इज प्लूमोल। एंड रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, और जो रेडिकल पार्ट है वो प्लांट की रूट को डेवलप करेगा। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। तो एम्ब्रियो से जो सीडलिंग बना, सीडलिंग मीन्स मिनी प्लांट जैसे हम कह सकते हैं, वो सीडलिंग बन गया कि द प्लूमोल शूट में चेंज हो गया, रेडिकल रूट में। तो स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो के बाद जो प्लांट दिखता है उसको बोलते हैं सीडलिंग। तो दिस इज formation, this process is known as germination. The process of development of a seedling from the embryo under appropriate condition is known as germination, यानी embryo से seedling का formation in the appropriate condition is known as germination.